یہ منظر جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ اگست 1965 کی ایک دوپہر کا ہے۔ سنگاپور کا نیا نیا وزیر اعظم لی کوان یو سرکاری ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ایک سادہ سی کرسی پر بیٹھا ہے۔ نہ پیچھے جھنڈوں کی قطار، نہ قوم قوم کو نہ قوم جگانے والے گانے، نہ رنگین گرافکس، بس ایک آدمی اور اس کی سچ بولتی آنکھیں۔ وہ چند جملے بولتا ہے، بات رکتی ہے، گلا بھاری ہو جاتا ہے، پھر اچانک سر جھک جاتا ہے اور کیمرے کے سامنے ایک وزیر اعظم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ ہچکی روکتے ہوئے کہتا ہے، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ہے۔ ہم ایک چھوٹا سا جزیرہ ہیں، نہ ہمارے پاس تیل ہے، نہ ہمارے پاس گیس ہے، نہ ہمارے پاس سونا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی خاص مدنیات ہیں۔ اگر ہم ناکام ہوئے تو دنیا ہمیں یاد بھی نہیں رکھے گی۔ اب یا تو ہم واقعی قوم بنیں گے یا نقشے سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے۔ کوئی باہر سے آ کر ہمیں نہیں بچائے گا۔ چند لاکھ آبادی کا نم آلود جزیرہ سنگاپور، جہاں پینے کا پانی تک دوسرے ملک سے آتا تھا۔ برطانوی فوجی اڈے جا رہے تھے، نوکریاں ختم ہو رہی تھی، نسلی فسادات تازہ تازہ تھے، خزانہ خالی، فوج نہ ہونے کے برابر۔ یہ سب اس نے چیلنج اور موقع کہہ کر لپیٹنے کے بجائے کھلے عام بقا کا سوال مان لیا۔ کیمرہ بند ہوا تو وہاں سے خوابوں کا ویژن کی کتاب نہیں نکلی، پسینے، ڈنڈے اور دیانت کا معاہدہ نکلا۔ آج 60 سال بعد کا سنگاپور دیکھیے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جس ملک کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا، آج اس کا جی ڈی پی فی کس $80,000 سے تجاوز کر چکا ہے، جو دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ 1965 میں ایک بے یار و مددگار جزیرہ آج دنیا کی بہترین بندرگاہ بن چکا ہے۔ ان کے پاس سونا یا تیل تو اب بھی نہیں، مگر ان کے پاس قانون کی حکمرانی اور سچائی ہے، جس کی بدولت دنیا بھر کا سرمایہ وہاں محفوظ ہے۔ وہ ملک جو نقشے سے مٹنے کا ڈر رکھتا تھا، آج دنیا کی معیشت کی سمت متعین کرتا ہے۔ یہ ہے اس سچ کا ثمر جو لی کوان یو نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ بویا تھا۔ اب اس آئینے کو اٹھا کر ذرا اپریل 2022 کے بعد کے پاکستان کو سامنے رکھیے۔ عمران خان کی حکومت کی رخصتی کے بعد جس استحکام کا ڈھول پیٹا گیا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ملک کو ایک ایسے معاشی و سفارتی بلیک ہول میں دھکیل دیا گیا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بند نظر آ رہا ہے۔ سنگاپور نے رو کر سچ بولا تھا، ہم مسکرا کر وہ جھوٹ بول رہے ہیں جس کی قیمت نسلیں چکائیں گی۔ آج ہماری معیشت آکسیجن پر نہیں بلکہ ڈیڈ باڈی کی طرح فریزر میں پڑی ہے، جس کا درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے چین، سعودیہ اور امارات کے وہ ڈالرز استعمال ہو رہے ہیں جو صرف اسٹیٹ بینک کے ڈپازٹس کی زینت ہیں۔ ہم انہیں خرچ بھی نہیں کر سکتے، صرف ان کی موجودگی کی بنیاد پر مزید ادھار اور قرضے مانگتے ہیں، صرف اس وجہ سے پڑے ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ تجربہ کار ٹیم کے آنے کے بعد پاکستان بدترین کیپٹل فلائٹ کی زد میں ہے۔ سرمایہ نکل رہا ہے۔ غیر ملکی کمپنیاں جو دہائیوں سے یہاں کام کر رہی تھیں، اپنا بوریا بستر گول کر کے بھاگ رہی ہیں۔ ٹیلی نار ہو یا شیل، انویسٹر کا بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ مقامی بزنس مین اپنا سب کچھ بیچ کر دبئی، ملیشیا اور ترکی منتقل ہو رہا ہے۔
जब मुल्क में डॉलर की शरह, बिजली के रेट और टैक्सों की भरमार का ये हाल हो कि फैक्ट्री चलाना नामुमकिन हो जाए, तो सरमायाकार सिर्फ हुब्बुल वतनी के नाम पर दिवालिया होने के लिए नहीं रुकता। इस मुआशी मलबे पर खड़ी की गई हमारी खारजा पॉलिसी खतरनाक और तजब्जुब का शिकार है। वॉशिंगटन को खुश करने की तड़प और बीजिंग को सब ठीक है का यकीन दिलाने की दोगली पॉलिसी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। एक तरफ हम चीन से सी पैक के तहफ्फुज की जमानतें नहीं दे पाते, दूसरी तरफ IMF की चौखट पर अमेरिका की खुशनुदी के लिए नाक रगड़ते हैं। हद तो यह है कि इस्तेहकाम के नाम पर इजराइल के साथ ताल्लुकात में नरमी के पस पर्दा इशारे देकर हमने अपनी इखलाकी और सफारती बुनियादों को भी खोखला कर दिया है। चीन जैसा आजमूदा दोस्त अब हम पर एतबार करने से कतराता है और अमेरिका हमें सिर्फ एक सिक्योरिटी क्लाइंट से ज्यादा कुछ नहीं समझता। इस दो कश्तियों की सवारी ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर गैर मोतबर बना दिया है। आज का कमाल यह है कि मार्शल लॉ सूट पहनकर, आइन हाथ में लेकर इक्तसादी बहाली के सेमिनार में तकरीर करता है। नाम जमहूरियत का है, अंदाज मशवरे का है, मगर फैसला कहीं और लिखा जा चुका होता है। पहले डंडा सीधा सियासत पर चलता था, अब शरह सूद, रुपए की कदर और टैक्स के नोटिफिकेशन की शक्ल में पूरे मुआशरे पर चलता है। ताकत का मरकज अब 3 चेहरों में बंट चुका है, एक वर्दी में, एक सूट में, एक लैंड डिवेलपर के दफ्तर में। फैसले अवामी मैंडेट से नहीं, बंद दरवाजों के दरमियान फाइलों के हाशिए पर होते हैं और कौम को बताया जाता है कि ये सख्त फैसले कौमी मफाद में हैं। रुपया अपनी कदर खो चुका है, महंगाई तारीखी सतह पर है और मुल्क का पढ़ा लिखा तबका पासपोर्ट बनवाकर बाहर भाग रहा है। हमने कर्ज को सांस लेने की नाली के बजाय मुस्तकिल ग़िज़ा बना लिया है और हर नई किस्त को यूं पेश किया जाता है जैसे कोई तारीखी कामयाबी हो। असल में ये जंग मिशत के सच के खिलाफ है। ये सिंगापुर के ली कुआन यू ने सच बोलकर कौम बना दी थी। हम झूठ, मफाद परस्ती और बैरूनी सहारों के बल बोते पर बनाई कौम और मिशत को नक्शे से मिटाने की राह पर डाल चुके हैं। हकीकत यह है कि हम एक कौम के तौर पर नहीं बल्कि एक डेडलाइन के तौर पर जी रहे हैं। डेडलाइन सिंगापुर के हुक्मरान ने रोकर कौम को खड़ा कर दिया था। हमारे हुक्मरान हमें लोरियां सुनाकर कब्र की तरफ धकेल रहे हैं। याद रखो, जब मुल्क का सरमाया, दिमाग और हुनर सरहदें पार कर जाए और रियासत सिर्फ उधार की किस्तों पर जश्न मनाए तो वो तबाही की आखिरी लकीर होती है। हमें किसी दुश्मन ने नहीं, हमारी अपनी खामोशी और इन मुकद्दस झूठों ने बर्बाद किया है। आज सवाल मिशत का नहीं, बका का है। आज फैसला जमीन बचाने का नहीं, अपनी गैरत और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बचाने का है। अगर हम आज भी इन बंद दरवाजों के फैसलों को मुकद्दर मानकर खामोश रहे तो तारीख हमें याद नहीं रखेगी बल्कि कूड़ेदान में फेंक देगी। कौमें इबरत पकड़ने के लिए होती हैं, इबरत बनने के लिए नहीं। शायद मेरी किसी फाजिल व्यूअर को या मोहतरम व्यूअर को परेड ग्राउंड का वो जलसा याद हो जिसमें इमरान खान ने साइफर लहराया था और साइफर लहराते हुए इमरान खान की आवाज भर गई थी। इमरान खान का गला रुंध गया था। अगर यकीन नहीं आता तो परेड ग्राउंड का वो साइफर वाला जलसा निकाल लें, आपको वाज़े पता चलेगा कि इमरान खान के गले में और इमरान खान की आंखों में क्या था। वो था ली कुआन यू का
फूट फूट का रोना। इमरान खान फूट फूट का रोना चाहते थे कि जो कुछ ये कर रहे हैं मेरे साथ नहीं कर रहे, मुल्क के साथ कर रहे हैं, मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं, लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से मुल्क को कोरोना से निकाला, अल्लाह की मदद से मैंने बड़ी मुश्किल से ट्रैक पे मुल्क को डाला, मिशत को ट्रैक पे डाला, लेकिन इनको फिर खारिज शुरू हो गई है। ली कुआन का वो रोना और रोकर सच बोलना। इमरान खान बार बार सच बोलते थे, बार बार सच बोलते थे, दो दो दफा एक दिन में टीवी पर आते थे और बताते थे कि मसाइल क्या हैं, लेकिन यहां पे झूठ झूठ अजमत और मुकद्दस और तकद्दुस और मुकद्दस गायें हमें आकर जो है वो डराती हैं, धमकाती हैं, हमें धमकियां देती हैं। और मुल्क है वो नमक की तरह, जिस तरह नमक गलता है आहिस्ता आहिस्ता, उस तरह जो है वो मुल्क गल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये दूसरा बुलेटिन है आज का। आज 27 जनवरी 2026 है और दिन है मंगल का। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है जब इमरान खान की बहनों को इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाती और उनको रोडों पर जो है वो घुमाया जाता है, उन पर रियासत अपनी ताकत आजमाती है। आज 7 शाबान है और 15 माघ है। कुछ ताज़ा तरीन खबरें, कुछ ताज़ा तरीन ट्वीट्स, सियासी बयानात और एक वीलॉग आपकी खिदमत में पेश करना है। लेकिन उससे पहले आपको याद कराना है कि हर चौक डी चौक, यानी 8 फरवरी को हमने मुकम्मल हड़ताल करनी है, हमने दुकानें बंद रखनी है, हमने जो चक्का है उसको जाम करना है और हमने अपना कारोबार नहीं करना। और अगर जलसा होता है तो हमने जो है वो सड़कों पे बाहर आना है, एहतजाज होता है। कोई उसमें तशद्दुद नहीं, कोई डंडा नहीं, कोई सोटा नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई पत्थर नहीं। आप ये देखें ना, आपको अगर पुलिस से डर लगता है, अगर आप सारे इलाकों में निकलते हैं, सारे शहरों में निकलते हैं, तो कहां कहां पे पुलिस जो है वो आपको रोकेगी या किस किस पे FIR होगी। एक दिन निकालें अपने लिए, अपने कौम के लिए। जिस तरह मैंने आपको वाकया सुनाया ली कुआन यू का, ली कुआन यू ने बिल्कुल सिंगल हैंडेडली सिंगापुर को कहां पे पहुंचा दिया। हम तेजी से इमरान खान को खो रहे हैं, ये बात मैं आपको बता दूं। इमरान खान बीमार भी हो गए हैं, इमरान खान की दाएं आंख में इन्फेक्शन भी हो गया है। उसके मुतालिक एक बड़ी स्टोरी है, वो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन आपने 8 फरवरी को याद रखना है। इसके अलावा आपने पैकेज को याद रखना है। चैनल, मैंने कहा ये चैनल नहीं है, ये पैकेज है। इसमें इंशाल्लाह मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आपको गुफ्तगू मिलेगी जो आपको जो है वो इन्फॉर्म करेगी, जो आपको अपग्रेड करेगी। तो उसका तरीका ये है कि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइबर हैं तो लाइक करें और अपने प्यारों के साथ, अजीजों के साथ जो है वो इसको शेयर करें। और खासकर ये कि वीडियो का कोई हिस्सा भी स्किप न करें और पूरी वीडियो देखें। सबसे पहली खबर वो एमल वली, बल्कि एनिमल वली, ये फरमाते हैं कि जो जरदारी चाचा की पार्टी है वो भी हाइब्रिड पार्टी हो चुकी है। मैं कभी कभी इनके बयानात पढ़ता हूं ना, तो यकीन करें मेरे मुंह से बेख्तियार ये निकलता है कि कैसे कर लेते हो यार। ये बंदा कौन है पता है आपको? ये वली खान का पोता है, असफंजार का बेटा है। और इसको ले गए बलोचिस्तान, एक पंगूड़े में डाल के। बलोचिस्तान में इसका शजरा नसब तब्दील करवाया गया, इसका पता तब्दील करवाया गया, इसका पता बलोचिस्तान से जो है वो लिखवाया गया। फिर इसको बलोचिस्तान की असम्बली से, क्योंकि वो खिलौना है, बलोचिस्तान की असम्बली कोर कमांडर के तहत आती है, वहां से इसको सेंटर बनवाया गया। अब ये कह रहा है कि जरदारी की पार्टी जो है वो हाइब्रिड हो गई है। बहरहाल यही कि कैसे कर लेते हो यार। ठीक है, अगली खबर जो है वो सलीम मलिक, इनका इंटरव्यू आया है। मेरी उम्र के बंदे जानते होंगे कि बहुत स्टाइलिश बैट्समैन थे, बहुत खूबसूरत बल्लेबाज था सलीम मलिक, लेकिन फिर जुए शुरू में पड़ गया। माशाल्लाह हम बेचते रहते हैं, आपको पता है अमरीकी कहते हैं इनको डॉलर्स दें, तो अभी भी खिलाड़ियों का स्कैंडल बना हुआ है। लेकिन इन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि हमने इमरान खान को उस वक्त पहचाना जब हम सारे मैच हार चुके थे, हमारे 4 पॉइंट्स थे और इमरान खान कहते थे
कि आप देख लेना फाइनल हम खेलेंगे। और हम आपस में गुफ्तगू करते थे, जो नौजवान लड़के थे, कि कप्तान का जो दिमाग है वो शिकस्तों की वजह से खिसक गया है। हमें इमरान खान की दिमागी हालत पे शक होने लगता, और जब हम फाइनल में पहुंचे तो हम आंखें मलते, हम एक दूसरे को चूड़ियां काटते कि वाकई हम फाइनल में पहुंच गए हैं। तस्लीम मलिक कहते हैं कि मुझे उस दिन पता चला कि इस बंदे का जो अकीदा है, इस बंदे का जो यकीन है, वो अनशेकेबल है, वो गैर मुतजलजल है, और ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। उसके साथ मौजूद रमीज राजा ने कहा कि इमरान खान आपको 1000 में से 1000 दफा गलत साबित करेगा, और वो खुद जो है उसकी जो पॉलिसी होगी वो ठीक होगी। ये इंटरव्यू वायरल हो रहा है। उसके बाद हमदुल्ला, जब पीडीएम बनी, हाफिज हमदुल्ला उसके सेक्रेटरी जनरल बल्कि तर्जुमान थे। जब चोरों की बारात इकट्ठी हुई एक तंबू के नीचे, तो ये कहते हैं कि 18 साल से अगर आप 25 साल उम्र कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमें पता है हमदुल्ला के मुताबिक कि ये क्यों किया जा रहा है, लेकिन इससे कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ता। आपने अदालत बर्बाद कर दी, आपने पार्लियामेंट बर्बाद कर दी, और ये जो सारे रास्ते हैं ये मुल्क तोड़ने की तरफ जो है वो जाते हैं। ये फरमा रहे हैं हाफिज हमदुल्ला। हाफिज हमदुल्ला साहब, ये उस वक्त सोचना था ना, आपको 8 फरवरी 2024 में से हिस्सा नहीं मिला, बड़ा हिस्सा नहीं मिला, तो अब आप ये बातें कर रहे हैं। बहरहाल कैसे कर लेते हो यार। उससे अगली जो सुर्खी लगी अखबार में, सुपर वजीर आला की सुपर टीम का सुपर कारनामा पूछे क्या है कि मरी में जो है ना वो सड़कों से बर्फ हटा दी गई है। खुदा वास्ते हटाई है कि वो मुलाजिम हैं। इस मुल्क का यही मसला है। जर्नैल क्या है, सरकारी मुलाजिम है, तो फिर गाने किस चक्कर में नूरजहान के, और फिर हम इनकी पूजा क्यों करें, इनकी प्रस्तिश क्यों करें। आखिर रातें जाग रहे हैं, वापडा वाले भी रातें जागते हैं, उस्ताद भी 0 पीरियड लेते हैं, मैं खुद 0 पीरियड लेता रहा हूं, एक्स्ट्रा पीरियड भी लेते हैं। आखिर ये जड़ा है ना जी मुकद्दस है, इनका काम है सड़कें साफ करना। कौन सी सुपर वजीर आला और कौन सी सुपर टीम उसकी, मरियम औरंगजेब, अजमा बुखारी, मरी में सड़कें साफ हो गई हैं। ये हेडिंग लगी है अखबार में हेडिंग लगी है। बहरहाल कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं। फॉफिन ने, आप ऊपर देखें सुपर वजीर आला, फॉफिन ने क्या इंकशाफ किया है। फॉफिन ने इंकशाफ किया है कि पंजाब के 12% घरानों का कूड़ा जो है वो बल्दियाती इदारे उठा रहे हैं। 12% पंजाब का, जबकि सिंध का हम सारे बातें करते हैं और कराची पे कूड़े के ढेर दिखाए जाते हैं। सिंध में 16% जो है वो इदारे उठा रहे हैं, पंजाब में 12% और सिंध में 16%। फॉफिन मजीद क्या लिखता है, फॉफिन कहता है कि दीबालपुर में जो है वो 55 किलो आलू, अगर आपने जाना, मैंने पिछले दिनों में भी बताया था कि मुझे एक दोस्त को फोन आया था कि अगर एक बोरी 120 किलो की चाहिए तो मैं भिजवा देता हूं। मैंने तो मना कर दिया था। 55 किलो आलू जो है वो 300 रुपए का मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि हमें तो 100 रुपए का बाजार से मिल रहा है या 80 रुपए का, तो मिडिल मैन ये क्यों मौजूद है, ये मौजूद है, इनके मिडिल मैन मौजूद हैं। गंदम को देखे ना, गंदम इन्होंने 1600 से शुरू की, मन 1600, फिर ये 1800 पे गए, 2000 पे गए, 2200 तक गए। 2200 रुपए की मन इन्होंने खरीदी। अब बाजार में जाएं 5000 की मन, तो दरम्यान में यही है, और कौन है। वैसे जुनैद सफदर क्या करता है सारी जिंदगी, सफदर ने क्या किया है सारी जिंदगी। उसके बेटे की शादी देखी है। पहले वो कप्तान था, जिस दौर में वो कप्तान था ना, उस दौर में कप्तान की मेरा ख्याल है 25,000 तनख्वाह थी, जिस दौर में वो कप्तान था। मुस्तफा जतोई ने उसे एडीसी लगवाया था नवाज शरीफ का, फिर उसकी लॉटरी लग गई, लॉटरी का आपको पता है। उस वक्त उसकी तनख्वाह 20,000 रुपए दी। तो क्या किया कैप्टन सफदर ने, जो जुनैद सफदर का, राहत फतेह अली खान ने जो है ना वो 3 गानों का 3 करोड़ लिया, और वो 70 लाख के बाद कहां से आ गए, ये आपके पास है, मेरे पास है। यही गंदम और आलू वाले 55 किलो मिल रहा है 300 रुपए में। अगली बात सुने, 1 एकड़ पे किसान कहता है कि मेरा खर्च अपना एकड़, लीज वाला नहीं,
ठेके वाला नहीं, अपना एकड़। अपने एकड़ पे खर्चा आया है 1,15,000 रुपए। आलू के 1 एकड़ पे किसान ने खर्च किया है 1,15,000 रुपए, और उसको रिकवरी हुई है 1 एकड़ से 63,000 रुपए। बताएं, जो खर्च किया वो किया 1,15,000, 1.25 लाख, और रिकवरी कितनी हुई? 63,000। वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है कि वो आलूओं को चारपाई पे रख के ऊपर सफेद चादर डाल के तो वो जनाजा उठा के जा रहे हैं। इधर सुपर वजीर आला, उसकी सुपर टीम, उसके सुपर काम। सड़क जिन्होंने साफ किया उनका काम है, वो तनख्वाह किस बात की लेते हैं? लोगों के टैक्सों से। बहरहाल जी, कैसे कर लेते हो यार। फिर गंदम पे फाफन ने कहा है, आपको बता दिया मैंने, कि अब वो आटा वो मिल रहा है 3,000 का, 3,000 का 20 किलो। इन्होंने मन ले लिया 2,400 का मन गंदम, 40 किलो, और 20 किलो का आटा मिल रहा है 3,000 का। यहां पे पैसों का अंदाजा करें कितने पैसे कमाए गए। कैसे कर लेते हो यार इस कौम के साथ। फॉफिन ने एक जो है ना चलाई है वीडियो, जिसमें मुख्यमंत्री कह रही है, सदर की बुढ़ी कह रही है कि लोगों को मैंडेट दो, वोट को इज्जत दो, रियासत के ऊपर रियासत न बनाओ, आइन को बूटों तले न रोन दो। ये सदर की बुढ़ी कह रही है उस वीडियो में। अब कैसे कर लेते हो यार। अब वो मैंडेट, वो रियासत के ऊपर रियासत, अपनी हदूद में रहो, अपने आइन में रहो, अपने हलफ की पासदारी करो। ये फॉफिन ने जो है ना वो वीडियो चलाई है। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब, ये बड़ी स्टोरी है, और स्टोरी की है असदुल्ला खान ने भी की है, और जमील फारूकी ने भी की है, और जो है खालिद जमील ने भी की है। सारे बहुत बड़े मुझसे और बड़े जो है ना क्रेडिबल सहाफी हैं। ये बात तो तय है कि हफ्ते और इतवार की रात को इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट किया गया है। ये तो फैक्ट है। अस्पताल पे इख्तलाफ है, अस्पताल पे इख्तलाफ है कि पिम्स था या कोई फौजी अस्पताल था, इस पे इख्तलाफ है। इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है कि इमरान खान को हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब को किसी अस्पताल में ले जाया गया है, और वहां उनको इंजेक्शंस लगे हैं, उनकी आंख का मुआयना हुआ है, उनको निगहदाश्त में रखा गया है। ये जो है ना, अब इस पे जो और बड़े सहाफी हैं वो कहते हैं कि जब भी मामला प्रेशर का होता है ना, प्रेशर का, एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में आती है, हुकूमत प्रेशर में आती है, तो वो ये चूरन और ये कुरकुरे ले आती है। यानी अब अगर इमरान खान अस्पताल में गए तो मैं मुतमईन हो गया, आप लोग मुतमईन हो गए, सपोर्टर्स मुतमईन हो गए, आज बहनें मुतमईन हो जाएंगी कि खान साहब अस्पताल गए हैं। जाहिर है अस्पताल गए हैं तो कोई दवाई दारू, कोई इंजेक्शन, कोई आराम होने आया होगा, बेड पे लेटे होंगे। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि फिर ये मकरू खेल खेल रहे हैं, ये इन्होंने खुद फिलर छोड़ा है। बहरहाल ये सारे सहाफी रिपोर्ट कर रहे हैं, जरा इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं कि इमरान खान को अस्पताल लाया गया, किसी को कोई पता नहीं था, इस तरह जो है ना प्लान किया गया। बाद साहब कहते हैं पिम्स में लाया गया, यानी ये असदुल्ला खान की जो है वो खबर है कि पिम्स में लाया गया। जमील फारूकी साहब का दावा है कि किसी फौजी अस्पताल में लाया गया, और मेरी जाती राय यह है कि अगर ये बात दुरुस्त है तो इमरान खान को किसी फौजी अस्पताल में लाया गया होगा, क्योंकि वहां पे डिसिप्लिन, कोई तस्वीर, कोई वीडियो ये बाहर न जाए। तो आपको पता है जितने दलेर हैं, जितने ये जो है ना वो नूरजहान के गानों से जोश पड़ता है इनमें, वो तो आपको पता है, वो तो हमें पता चल गया। वैसे एक बात है कि पूरे जो है ना वो कैरियर में कभी जनरल आसिम मुनीर या जो दूसरे जर्नैल हैं, इनको फेयर प्ले का दर्श नहीं दिया गया कि फेयर प्ले क्या होता है। आप इमरान से फेयर प्ले करें ना, फेयर मुकाबला करें, पता चल जाए। ये तो वो बंदा है जिसके साथ आप ये कुछ कर रहे हैं,
अंपायर ने कृष्णामचारी श्रीकांत को एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया था, आउट। वो इतराज करने लग गया, खान ने बुला लिया वापस, क्या जाओ दोबारा खेलो। ये तो वो बंदा है, ये तो वो बंदा है जिसने बैन अल-अक़वामी क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लाया। ये तो वो बंदा है, इसके साथ फेयर खेलो यार। कभी किसी उस्ताद ने नहीं बताया, जब आप पढ़ते थे 9वीं 10वीं के फेयर प्ले क्या होता है, कभी नहीं बताया। कभी किसी फौजी इंस्ट्रक्टर ने भी नहीं बताया कि फेयर प्ले क्या होता है। फेयर प्ले करो ना उसके साथ, आप लोग ताकतवर हो, फेयर प्ले करो, उसकी केस लगने दो, उसे बाहर आने दो, ताकत का पता चल जाएगा। आधी आधी रात को आप ख्वार होते फिर रहे हैं, उसको अस्पताल ले जा रहे हैं, अडयाले से अस्पताल तक तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने शहनशाह में कहा था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहनशाह। अब नया नोटिफिकेशन, पतंग पे कोई परचम, किसी की तस्वीर, किसी मुल्क का झंडा, कोई मजहबी अंदाजा करें। किस मुल्क का झंडा लगाना है लोगों ने, किसका झंडा लगाना है? आपके बाप अमेरिका का? किसकी तस्वीर लगानी है लोगों ने? कौन सा नंबर लिखना है लोगों ने? आप क्या समझते हैं? चे कौम को, जेन जी को आप चे समझते हैं? इन बाबों को आप चे समझते हैं? नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिफिकेशन दिलेरी देखें, टेंशन टेंशन, ये थी ना पे दिलेरी चेक करें। इनको शर्म भी नहीं आती? हर चीज का लोगों को पता है, हर चीज का लोगों को पता है। अब ये नोटिफिकेशन क्यों आया है? मैंने थंबनेल पे भी पतंग लगाई है, खान हवाओं में खान उड़ेगा, नकदा कोका बजेगा। वो दिल, वो आया, उसने देखा, उसने फतह कर लिया। दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान, दुनिया का। ऑक्सफोर्ड, क्रिकेट, वर्ल्ड कप, यूनानी देवता, वजाहत, क्रिज्मेटिक, क्रिश्माती शख्सियत, नमल, शौकत खानम, वजीर आजम, दिलों का राजा, खुशकिस्मत तरीन शख्स। मेरा ख्याल है 1% होते हैं दुनिया में इस जैसे लोग। और बदकिस्मत तरीन शख्स, कमी कमोड़े दुश्मन, कमी कमोड़े, नस्लों से कमी, नस्लों से। कोई शेरे बेचने वाला, कोई टिकट बेचने वाला, कोई चौकीदारी करने वाला, कोई 2-2 दफा रिटायर होने वाला, कोई लेफ्टिनेंट जनरल बनने से पहले गायब होने वाला, मीना गायब हो गया कि चीफ की फहरिस्त में आ जाऊं, जो चीफ बनेंगे वो बाजवा। इनकी कौन सी जातें, इनकी कौन सी कौमें? नवाब ऑफ कालाबाग ने कहा था ना कि शजरे के बगैर तो हम कुत्ता नहीं रखते। तुम अफसर कह रहे हो हम कुत्ता नहीं रखते, हम घोड़ा नहीं रखते शजरे के बगैर। तो शजरे के बगैर फिर यही होता है ना, यही होता है। कोई बुजुर्गों की इज्जत, कोई अब्बे की, कोई दादा की, कि मेरा दादा इस तरह था, मेरा अब्बा इस तरह था। इनका कोई हो आगा पेछा, तो इनका आगा पेछा इक़्तिदार है। तो बहरहाल जी, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं, और नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। ये वो जनाब, हां हूं, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती? इमरान अहमद खान न्याजी। उसके बाद अगली बात करें तो अगली बात जो है ना, फिर वीडियो लंबी हो जाती है, आप गालियां देते हैं। अगली बात जो है वो ये है कि 2 आरा कि फजल रहमान ने फिर बयाना पकड़ लिया है। बिल्कुल गया जनूबी अफ्रीका, 70 लाख उलमा को भी ले गए, 70 लाख उलमा जो उसके पीछे हैं। 8 फरवरी को पीटीआई ने चक्का जाम, हड़ताल, शटडाउन इसका ऐलान किया। उसने पूरे मुल्क में यौम स्याह का ऐलान कर दिया, पिंडी में जलसा रख दिया। अब ये विजुअल बनाएगी हुकूमत और जर्नल कि देखिए जी कहीं पे भी हड़ताल नहीं है, ये देखें लोग। इसमें भी 2 राय हैं। एक राय ये है कि बयाना पकड़ा, ये बड़ी राय है
یہ بڑی رائے ہے. آپ کومنٹ کر سکتے ہیں کہ بیانہ پکڑا ہے ہڑتال کو ناکام کرنے کے لیے. دوسری ایک یہ بھی آواز ہے کہ جی وہ واقعی یوم سیاہ منا رہے ہیں 8 فروری کو. اگر 8 فروری پہ یہ شخص یوم سیاہ منا رہا ہے تو مقصود نشستیں کیوں لی پی ٹی آئی کی؟ وہ تو جیب میں ڈال لی. وہ تو کوئی سالیاں، کوئی کون سیاں ماسیاں چاچیاں وہ تو لے آیا قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی. وہ کیوں لی؟ اگر 8 فروری پہ اعتراض تھا الیکشن پہ، اعتراض صرف یہی ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، جتنا حصہ نون لیگ کو ملا، جتنا حصہ پیپلز پارٹی کو ملا، جتنا حصہ ایم کیو ایم کو ملا، اس کو نہیں ملا. یہ خود ڈیرے سے بھی بھاگ گیا. یہ پشین سے جا کے فارم 47 پہ میں نے بنا، پشین پشاور سے کوئی تھوڑے سے ووٹ لے کر، اس کو حصہ نہیں ملا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس نے بیانہ پکڑا ہے، پھر بیانہ پکڑا ہے. جرنیلوں کو نکالنے کے لیے مشکل سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ اس طرح ہے، اس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بالکل اندر سے ایک ہے. ورنہ غزہ پیس بورڈ ہو گیا اور یہ بندہ جنوبی افریقہ نکل جاتا. عمران ہوتا تو عمران ان سب کے عمران کو مائنس کر کے یہ سب ایک ہیں. جس طرح آپ ایک آٹے کے توڑے سے ایک مٹھ آٹا نکال کے سائڈ پر رکھ لیں، یہ پورا تروڑا ہے، پورا تروڑا. فضل الرحمان، نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، علیم خان، بلاول زرداری، یہ سارے ایک ہی آٹے. جرنیل بھول گیا ہوں سب سے پہلے وہ، یہ سارے ایک ہیں، یہ سارے ایک ہیں. صرف عمران خان ان میں سے مختلف سٹاف ہے. اور میری جو ذاتی رائے ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس نے بیانہ پکڑا ہے، اس نے 8 فروری کو ناکام کرنا ہے. ابھی تک آپ کو میری آواز پسند نہیں آئی، اگر آئی ہے تو ویڈیو آپ نے لائک نہیں کی، شیئر نہیں کی. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.